Alright, boys, welcome back to our channel Nomad, as you all know, if you do. Okay, so today I want to talk about a message given by Ty Lopez. Uh, I hope you all know him, but if you don't, I recommend you go and watch him. Ty Lopez is an entrepreneur, billionaire, and who knows a lot about a lot of things. However, if you want a mentor for your life, only one mentor, then it should be Ty Lopez. For me, it's Ty Lopez. For a lot of people of my industry, like who are on the self improvement, and I know them, their first choice is also Ty Lopez. So I ask you to go and watch him. If you like it, well and good. If you don't, then I don't know what to do. He knows a lot and he shares his knowledge. Okay, so months ago, Ty Lopez shared a post on Instagram, which is man, optimize your life in this order. The first thing is time freedom. Second is sleep. Third is money. Fourth is loyal friends. Loyal friends. Fifth is status within your industry. Sixth is women. Seventh is approval of society. So the first point is time freedom. The thing is, time is the most important thing अकॉर्डिंग टू मी, और शायद वो चीज़ है। टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी के वर्ल्ड में। अभी क्या, पहले देख लो, अभी देख लो, आगे देख लो, टाइम विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, देयर इज़ नथिंग यू कैन डू। द फर्स्ट थिंग इज़ टाइम फ्रीडम। जितना ज़्यादा हो सके तुम वो चीज़ें करो जिससे तुम्हें टाइम फ्रीडम मिले। सो टाइम फ्रीडम का मतलब ये है कि एबल टू डू द थिंग्स व्हेन यू वांट टू। अगर तुम्हारा मन करता है कि मुझे अभी पढ़ाई करनी है, तो इफ़ यू हैव टाइम फ्रीडम देन यू आर फ्री टू डू दैट। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू। इफ़ यू वांट टू गो एंड प्ले आउटसाइड, यू कैन। वो टाइम फ्रीडम है कि हाँ, मैं जो चीज़ चाहूँ मैं वो चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले उस लेवल पे पहुँचना पड़ेगा। तुम्हें वो सब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी उस लेवल पे पहुँचने के लिए। मतलब पहले तुम्हें कुछ अर्न करना पड़ेगा लाइफ में, ठीक है। इफ़ यू हैव a business, or you have money, or you have job, something like that, then you can do, like अगर तुम्हारे पास जॉब है, then think of it कि you work under a boss, so तुम जो चाहो वो नहीं कर सकते। your boss tells you to do this, you are not free, he has a right over you. So the first point is time freedom. The second point is sleep. अब I don't know if you know or not, but sleep is very important. मैंने इसके ऊपर शायद एक वीडियो बना रखी है पहले। आई रिकमेंड यू गो एंड वॉच दैट। उसमें बहुत कुछ बताया मैंने स्लीप के ऊपर कि हाउ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। शायद मैंने टेस्टोस्टेरोन वाली वीडियो में स्लीप का पॉइंट एक कवर किया था, हाँ। सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम 7 से 8 घंटे सो रहे हो, तो उसका मतलब है कि तुम 8 से 9 घंटे बेड पे रह रहे हो, ठीक है। स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ। अगर तुम जिम करते हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि स्लीप की कितनी इंपॉर्टेंस है, और अगर नहीं करते तो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि स्लीप इंपॉर्टेंट है। अल्बर्ट आइंस्टाइन यूज टू टेक नैप्स बिटवीन हिज वर्क आवर्स। वो बीच बीच में सोते थे बिकॉज ही न्यू द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्लीप। द थर्ड पॉइंट इज मनी. The first point was time freedom, the second is sleep, and then the third point is money. Okay, so the first priority is not money. First priority is time freedom. Second is sleep, means your health, and then comes the money. Money is important, I know, but it's not the most important thing in your life. The most important thing in your life is your self satisfaction, your happiness. Money is not. Money is a secondary thing, an external thing that can give you happiness, but it's not the real happiness that we all crave for. Money is an external thing. Internal things gives us happiness, not the external things. These are materialistic things, but we get happiness from mainly spiritual things like love, which makes us happy. Money, like, just think of it कि
तुम्हें ज़्यादा खुशी कब होगी? जब तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे खुश रहे, तुम्हारी फैमिली तुमसे खुश रहे, फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहे, या फिर जब तुम्हारे पास पैसा हो, जब तुम अगर कोई जॉब करते हो तो हर महीने तुम्हारे पास 1-1.5 लाख का चेक आए, तब ज़्यादा खुशी होगी? थिंक ऑफ इट. The fourth point is loyal friends. I don't know what to say about this. The fourth point is loyal friends. It is very important to have loyal friends in your life. अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसे लोग हैं जिनसे तुम ओपन अप कर सकते हो, जिन्हें सब कुछ तुम बता सकते हो, जो तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर कर सकते हो जो तुम चाहो, इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन हैव इन योर लाइफ. क्योंकि आई नो आई हैव फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, एंड आई नो देयर इम्पोर्टेंस, वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में. जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हाँ, मैं उनसे जाके शेयर कर सकता हूँ. अगर तुम इंस्टा पे रील्स देखते हो तो मैं देखता देखता था, अभी भी कभी कभी हो जाता है, रील्स देख लेता हूँ तो उसमें ऐसा आता है कि जब मतलब ऐसा कुछ रील का ऐसा कॉन्टेक्स्ट ये रहता है कि हाँ, आई एम हैप्पी व्हेन आई एम अराउंड माई फ्रेंड्स, विच इज़ ट्रू. इफ़ यू हैव गुड फ्रेंड्स देन यू विल बी हैप्पी अराउंड दैम. So try to have loyal friends who are loyal to you and be loyal to them. The fifth point is status within your industry. If you are into academics, like if you are studying, then try to be at the best level as you can in your studies. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ठीक है, अगर इफ़ यू आर लाइक, अगर जैसे तुम स्कूल में हो, तुम्हारी क्लास है, तो उसमें अगर तुम पढ़ाई में अच्छे होंगे, अगर तुम पढ़ाई में हो, इफ़ यू लाइक टू स्टडी देन बी गुड इन स्टडीज़. इफ़ यू आर इनटू स्पोर्ट्स, बी गुड इन स्पोर्ट्स. इफ़ यू आर इनटू कल्चरल थिंग्स लाइक डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, देन बी गुड एट दैट. क्योंकि अगर उस चीज़ में तुम अच्छे हो गए ना, देन दैट गिव्स यू एन अपर हैंड इन द सोशल हायरार्की. लोग तुम्हें ज़्यादा अच्छा मानते हो उन सब चीज़ों. अगर तुम किसी चीज़ में अच्छे हो तो पीपल स्टार्ट ट्रीटिंग यू गुड, बेटर देन बिफोर. लाइक अगर कोई है कि वो सब में ही एवरेज है, मैं था स्कूल में, मैं सब में एवरेज ही था, और कुछ ऐसे हैं कि हाँ, इफ़ दे आर इनटू स्पोर्ट्स देन दे आर गुड एट दैट. तो उनसे और मेरे में लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंस था. क्लास के बच्चे उन्हें अलग देखते थे और मुझे अलग देखते थे. आई वॉज द एवरेज गाय, बट सम guy was good in sports, some was good in studies, some was good in music or dance, like that. So try to be better in your industry. The sixth point is women. Having a woman who loves you, having a partner who loves you is very important. It's as important as having loyal friends. Like हाँ, अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा पार्टनर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इफ़ यू हैव अ पार्टनर देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट शी और ही शुड बी अंडरस्टैंडिंग, caring, loving, possessive. No, I won't say possessive. Like बस हाँ, तुम्हारे बीच में प्यार होना चाहिए, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे की बाउंड्रीज हो तो उन्हें समझो. मतलब एक दूसरे को समझना, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. अगर अंडरस्टैंडिंग पार्टनर है तुम्हारा, इट्स वेल एंड गुड. लाइक इट्स गोना लास्ट लॉन्ग. ठीक है, अब मैं नहीं बोल सकता लाइक इट वुड बी फॉर एवर. हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, बट yeah, it's gonna help a lot. Agar one scenario is you have an understanding partner and another scenario is you don't understand each other that well, that thing impacts you. अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें समझता है, your relationship is gonna last long. और मैं तो चाहूँगा कि हाँ, वो हमेशा के लिए रहे. बट ऐसा है कि कुछ चीज़ों में वो नहीं समझ पाते, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट. ट्राई करो, ट्राई एज हार्ड एज यू कैन, गिव योर बेस्ट इन योर रिलेशनशिप्स. मैं हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि डू द बेस्ट थिंग दैट यू कैन टू मेक अ रिलेशनशिप अ गुड रिलेशनशिप. गिव योर 100% इन दैट. तुम उन्हें समझाने का ट्राई करो कि हाँ, मैं ये चीज़ चाहता हूँ तो इसलिए मैंने ये किया, या इसलिए मैंने
ऐसी बात है तो तुम ये चीज़ समझो, और अगर वो तुम्हें कुछ समझाना चाहता है तो तुम भी वो चीज़ समझो। अगर बहुत ट्राइज के बाद में भी तुम्हारे बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, देन इट्स नॉट गोना लास्ट वेरी लॉन्ग। तुम्हारे बीच में लड़ाई होंगी, झगड़े होंगे, और फिर शायद लास्ट में ब्रेकअप ही बचेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लविंग एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों अलग अलग है। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई तुमसे प्यार करता हो तो वो तुम्हें समझे। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो वो तुम्हें समझे। ओके, सो मार्क दैट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दैट आई जस्ट सेड, कि हो सकता है कि तुम दोनों के बीच में बहुत प्यार हो, लेकिन अगर तुम आपस में समझते नहीं हो तो still that won't work between you guys. The seventh point is approval of society. Like, इन सब में सबसे कम इम्पोर्टेंस तुम इस चीज़ को दो कि हाँ, who cares, like सोसाइटी तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, डोंट गिव अ फक अबाउट इट। सोसाइटी कुछ भी सोचे, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट व्हाट यू थिंक। अगर तुम्हारा परसेप्शन क्लियर है, तुम्हें पता है कि मैं अभी ये चीज़ कर रहा हूँ, बाद में इसका ये रिजल्ट होगा, और तुम्हें वो चीज़ करनी है, देन डू दैट। आस्क देम जिन पे तुम्हें भरोसा है कि हाँ, ही और शी कैन गिव मी अ बेटर एडवाइस, सो आई शुड आस्क हिम और हर। सोसाइटी क्या सोचती है तुम्हारे बारे में, दैट शिट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। जस्ट डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, जस्ट डू वॉट यू थिंक, और हमेशा लॉन्ग रन में सोचो। ये नहीं है कि तुम अभी कुछ कर रहे हो, जैसे जिम जाना आज स्टार्ट किए हो, तो तुम सोचो कि हाँ भाई, अब तो हर दिन सुबह भी जिम जाऊँगा, शाम को जिम जाऊँगा, 3-3 घंटे जिम करूँगा, दिन में 6 घंटे जिम करूँगा, तो 1 महीने में मेरी बॉडी बन जाएगी। कुछ नहीं होने वाला। थिंक इन द लॉन्ग रन। अगर आज तुम जिम स्टार्ट किए हो तो 1 साल में तुम्हें चेंजेस दिखेंगे अपनी बॉडी में, कि हाँ, लोगों को ये लगना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ, ही गोज़ टू जिम, लाइक चेस्ट पंप हो जाएगी, बाइसेप्स आ जाएंगे, ट्राइसेप्स आ जाएंगे, आर्म्स थोड़ी अच्छी हो जाएगी, वेन्स दिखने लग जाएगी अगर बॉडी फैट कम है तो। लेकिन लॉन्ग रन में सोचो हमेशा। कुछ भी स्टेप लो तो वो देखो कि आगे जाके 5 साल में इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा। इफ़ यू स्टार्ट ड्रिंकिंग टुडे, थिंक ऑफ इट कि आगे जाके इस चीज़ में, इस वजह से मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लॉन्ग रन में सोचो। ये नहीं कि हाँ, अभी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं, डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे ध्यान दो। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इज यू आर ड्रिंकिंग। तुम अभी पियोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा, वो डोपामिन हिट होगा जिससे तुम्हें अच्छा फील होगा, लेकिन लॉन्ग रन में वो चीज़ सही नहीं है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज व्हाट, हाँ, एक और एग्जांपल कि देयर इज अ पीस ऑफ केक और चॉकलेट दैट यू वांट टू ईट, बट यू नो इट्स अनहेल्दी। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ये होगी कि तुम उस चॉकलेट को खा लो, कि उस टाइम पे तुम्हें अच्छा लगेगा। लेकिन डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज व्हाट, मैं ये केक नहीं, मैं ये चॉकलेट नहीं खाऊंगा क्योंकि अनहेल्दी है, विच विल इम्पैक्ट माई हेल्थ इन द लॉन्ग रन। सो थिंक इन द लॉन्ग रन। और हाँ, सोसाइटी का अप्रूवल कुछ मैटर नहीं करता है। The last thing you can think of is this approval of society. It's not important at all. That was all, and Ty Lopez knows a lot about these things. I would recommend you to go and watch him. Just because I watch him, that's what I'm. That's why I'm saying. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उन्हें स्पॉन्सर कर रहा हूँ या कुछ. That's it. If you like it, go and watch him. And if you don't, then it's up to you. And I would recommend you to watch my channel because it's mainly about self improvement. If you want to improve yourself, then keep watching. Bye.